solve this question, we have to solve. Okay, I'm just giving this question. Yeah, please solve it. क्या है question? There's a two block. Okay, we have a two block. Okay, we have a two block. We have two block on the floor. On the floor. On the floor. On the floor. That is one block here. One block is here. Okay. One mass. This is a block A. This is a block B. In this block, there will be a spring attached with this block. Okay. So this is the spring attached with this block. Have a spring constant K. Okay. And the mass of both block, mass of both block, MB and MA, both are equal, and that equal to 1 kg. Okay. And this block B, very important, this block B is moving with the velocity u, and that is equal to 2 meter per second. Okay. Now, and the spring constant is also given you, that is equal to 200. What is the unit for the spring constant? Tell me. क्या होगा spring constant का unit? Newton per meter. Yes, Newton per meter. Very good. Newton per meter. Very good. अच्छा, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो रेस्ट में है, ये वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और ये क्या करेगा, इसके साथ कोलाइड करेगा. ओके, इसके साथ कोलाइड करेगा. तो जब कोलाइड करेगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, कंप्रेस होगा. स्प्रिंग क्या करेगा, कंप्रेस होगा. तो यू हैव टू फाइंड, यस, यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम compression of the spring. Yes, you have to calculate this thing. Please do it. Please do it. Yes. कैसे करेंगे सॉल्व? और मोमेंटम का कंजर्वेशन का फॉर्म. यस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा. वेरी गुड. क्यों लगेगा, कहां, कब लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? क्या कंडीशन था? बिकॉज इसमें पहले आपका स्टेप होना चाहिए कि हमें सिस्टम कंसीडर करना है. ओके, हाँ, तो हम यहाँ पर सिस्टम किसको कंसीडर कर लेते हैं, इस ब्लॉक बी को और ब्लॉक ए को और जो स्प्रिंग है इसको. क्योंकि अगर आपने ब्लॉक ए को सिर्फ कंसीडर किया तो, या फिर ब्लॉक बी को सिर्फ आपने कंसीडर किया, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल हो जाएगा. तो हम यहां पर कर लेते हैं ब्लॉक. हाँ, सो ब्लॉक ए एंड बी एंड स्प्रिंग is our system. plus B. Yes, it's the system over. Correct. If it is a system, then you can see there will be no external force along this x-axis. Okay. Along the y-axis, there will be a force. That is normal force also, or mg is also. So that is external force. But along the x direction, there will be no external force. Because this spring force, when this block B compress the block A, so a spring apply some force on B as well as on A, but this spring force become internal force, so we don't have to be worry about it. And I here also given that this surface is smooth, so there will be no friction at all. Okay, there will be no friction at all. Okay, so if we see this thing, means if I saying that the system, this is our system, so we can say that total external force, net external force along x-axis is 0. So we can say that total momentum along x-axis is conserved. Okay, तो Yes, sir. पहले हम क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करके देखते हैं. ठीक है. ओके,
तो देखिए इनिशियली दिस ब्लॉक हैव सम वेलोसिटी, so it have only momentum, and the block A have no velocity. Block A have no velocity. Okay, block have velocity. no velocity. So think, when this block B going to collide with this block A, so spring get compressed, and the compression becomes slowly maximum. पहले थोड़ा कंप्रेस होगा क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट में है, बिकॉज दिस ब्लॉक इन रेस्ट, सो ये ब्लॉक धीरे धीरे इसको क्या करना स्टार्ट करेगा, दबाना स्टार्ट करेगा, और दबाते दबाते क्या हो जाएगा, कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा, उससे ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। हाँ। जैसे ही कंप्रेशन मैक्सिमम हो गया तो ये दोनों ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, एक साथ मूव करने लग जाएगा। सोचो, है ना, थोड़ा सोचो कि यदि पहले धीरे धीरे कंप्रेशन बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, जब कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा, कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा, तो उस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। ये देखो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया मैक्सिमम, सो देयर विल बी मैक्सिमम कंप्रेशन, सो मैक्सिमम compression. So when both compression become maximum, so both block, this block and this block, move with same velocity such that does not get separated. Okay, ये separate नहीं होंगे, both are moving with same velocity. अगर different velocity से move करते then it gets separated, but at the max, when it compress the spring maximum, then the velocity become same. Yes. So this is our initial situation, and this is our final situation. So because the momentum is conserved, so the initial momentum of this system would be equal to final momentum of this system. Yes. So in the system we have two block B and block A. So what is the momentum of the block B? That is mb into u, because I put here sign plus, because the momentum of this block is along the x-axis, so I'm putting sign here plus x, plus. And because block have no momentum, no velocity, so initially block A have no momentum, so I'm saying that the momentum of block A is 0. But when this block are moving with the same velocity, so both have some momentum. So I'm saying, because you can say the direction before and after the collision, the direction of the velocity will be same. So momentum, we say that the momentum of block B is mb into v plus. This is the final momentum of block B, and final momentum of block A, that is ma into v. So this is the final this is the total momentum, final momentum of this system. This is the initial momentum. Correct? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? यस सर। नो प्रॉब्लम नहीं सर। अभी तो नहीं है। बस सिंपल। तो हमें पता है mb कितना है 1, एंड u हमें पता है 2, और mb यहाँ पे 1, ये v प्लस 1 इंटू वी, सो 2v इज इक्वल टू आ जाएगा 2। सो इसका मतलब आ जाएगा v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा मैक्सिमम, उस टाइम पर ये दोनों ही साथ में मूव कर रहे होंगे, कितने स्पीड साथ, 1 मीटर पर सेकंड के साथ। ना अब एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप देखो तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा सिस्टम के ऊपर, और ये जो स्प्रिंग हो गया वो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी जो इनिशियली होगा वही क्या होगा, टोटल एनर्जी फाइनल होगा। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम यहाँ पे एनर्जी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है वो इंटरनल फोर्स हो गया, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है ओनली, बाकी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो जब कोई भी नॉन एक्सटर्नल फोर्स ना हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, तो हम लोग कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। So whatever the total energy initially, that should be equal to final total energy. तो एनर्जी जो पहले होगा, इस ब्लॉक के पास है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है तो स्प्रिंग के अंदर भी कोई एनर्जी स्टोर होगा नहीं,
ब्लॉक ए के पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा ब्लॉक बी के पास, दैट इज 1/2 mv/u²। ये हो गया इनिशियल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, that should be equal to final total energy of the system. So what is the final total energy? Because the velocity of this block is v and velocity of block A is also v. So kinetic energy of block, final kinetic energy of block B is 1/2 mv/v², 1/2 ma/v² और साथ में देखो स्प्रिंग अब कंप्रेस हो गया है, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगा। सो व्हाट इज द स्टोर्ड एनर्जी इन द स्प्रिंग? टेल मी। half kx यस, 1/2 square. k, इसको थोड़ा सा 1/2 k x, बट x यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है, कंप्रेशन हो गया मैक्सिमम, तो x मैक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तो सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो 1/2 mb आपको पता है दैट इज 1 और u आपको पता है इनिशियली दैट इज 2 × 2, 1/2 mb आपका है यहाँ पे 1, वेलोसिटी फाइनल कितना आया 1 प्लस 1/2 1 × 1 प्लस 1/2 k कितना गिवन है 200 × x² मैक्स। तो यहाँ से देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 200 आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे तो ये x मैक्स आ जाएगा। x मैक्स जो आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा 0.01 मीटर, 0.1 मीटर और यू कैन से 10 सेंटीमीटर। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. इजी था ना, बहुत इजी था क्वेश्चन। हाँ अच्छा, एक सवाल करते हैं और, ठीक है? यस ओके, एक बॉल है, ओके एक बॉल है, इसका मास कितना है m1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u1, और एक ये दूसरा बॉल है जिसका मास कितना है आपका m2, इसकी वेलोसिटी कितनी है u2, ठीक है? और ये आपस में, और यहाँ पे ये गिवन है कि u1 जो है वो आपका लेस देन है किससे, सॉरी ग्रेटर देन है u2 से। तो दिस द, तो ये कोलाइड करेंगे आपस में, कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। ओके, तो आपको बताना है कि v1 कितना होगा और v2 कितना होगा, v1 कितना होगा और v2 कितना होगा। ठीक है, मैं एक और डाटा दे देता हूं। m1 तुम्हारा यहाँ पे 10 kg है और m2 तुम्हारा यहाँ पे 15 kg है और u1 तुम्हारा है 30 मीटर पर सेकेंड और u2 तुम्हारा है 20 मीटर पर सेकेंड। So what is the v1 and what is the v2? If the collision, here mention that, mention है यहाँ पे, if the collision is elastic and inelastic, so coefficient of restitution, Newton law of coefficient of restitution, that is given to you 0.2. So what is the final velocity? Okay, please solve it. Okay, please solve it. Yes, sir. क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा यहाँ पे? थिंक देन टेल मी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा यहाँ पर? देखो इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन है, मैंने बताया था कि इलास्टिक कोलिजन होगा तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, अगर इनलास्टिक होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का शेप डिफॉर्म होने के बाद वो दोबारा रीगेन नहीं हो पाएगा कुछ अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज हो सकता है, एक ही चीज कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, तो ध्यान रखना है,
क्वेश्चन हमेशा मैं जो बता रहा हूं ऐसे ही सॉल्व करना, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनलास्टिक कोलिजन हो, व्हाटएवर टाइप ऑफ कोलिजन, बट हाँ हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, और कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे सॉल्व करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। So what is the law of conservation of momentum? This we consider this m1 and m2 as a system. ये मैंने सिस्टम कंसिडर कर लिया, तो अगर मैंने इसको सिस्टम कंसिडर कर लूं तो इनके बीच में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ओके, इनके बीच में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अब मैंने बताया था कि इसका मोमेंटम क्यों चेंज करेगा, इसका मोमेंटम क्यों चेंज करेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इंपल्स। ठीक है, इसीलिए m1 का Yes, भी sir. मोमेंटम चेंज करेगा, m2 का भी मोमेंटम चेंज करेगा, बट पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, ये सब मैंने थ्योरी में बता दिया आपको। ठीक है, मैं अब लिखने आ रहा हूँ डायरेक्ट। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस दैट इज m1 u1। क्यों लिखा मैंने यहाँ पे साइन दिया प्लस का, क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। अच्छा हाँ, ये भी अलोंग एक्स एक्सिस है, तो m2 u2, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। Initial momentum that should be equal to final momentum m1 v1 plus m2 v2 फाइनल। देखो प्लस साइन ही दिया है, क्यों, क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में है। अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में होता तो नेगेटिव आ जाता। तो नेगेटिव आ जाता। हाँ, सो दिस इज द फर्स्ट केस। देखो हमारे पास अननोन कितने हैं, v1 और v2, दो अननोन्स है, बट हमारे पास अभी इक्वेशन कितना है, एक है। इक्वेशन क्या है हमारे One. पास, एक है, तो वी कैन नॉट सॉल्व, वी कैन नॉट सॉल्व। यस सर बट उसके लिए एक जुगाड़ और दे रखा है, क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। Coefficient. यस, so what is the coefficient of restitution? That is velocity of separation. What is the velocity of separation here? v2 minus v1। V2. हाँ, मैंने यहाँ पे देखो v2 को भी प्लस साइन दिया है और यहाँ पे माइनस। देखो ये एक्चुअली में, ये ध्यान रखना, v2 माइनस v1, अगर v1 इधर की तरफ होता तो ये माइनस ऑफ माइनस v1 आता। ठीक है, डिवाइड बाय u2 बाय u1, सॉरी u1 माइनस u2, है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। Yes, यस sir. सर So we have two unknowns, we have two equations. If we can solve these equations, then we can get the answer. Very easy. Yes, sir. Yes. So I'm going to solve this equation. Okay. आपको क्या करना है, फॉर्मूला नहीं डिराइव करना है, मैं आपको सिर्फ केसेस समझाने के लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। बाकी आपको डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, दो ही इक्वेशंस के अंदर। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहां से मुझे बताओ v2 माइनस v1 जो तुम्हारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, e इंटू u1 माइनस e इंटू u2। ठीक है, अच्छा अब यहां से मैं ऐसे करके देखो, अगर मैं v2 को देखो तो v2 को ले सकता हूं v1 प्लस e इंटू u1 माइनस e इंटू u2। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं यहां पे पुट कर रहा हूं पहले वाले में। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, यहां पे देखो पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, v1 प्लस e इंटू u1 माइनस u2। ठीक है, हाँ तो ये आ गया आपका, देखो सिंपल। यहां से देखो m1 प्लस m2 इंटू v1 लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि v1 कॉन्स्टेंट दोनों में है, कॉमन आ गया। और इस वाले टर्म को मैं इस तरफ ले जा रहा हूं, तो m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस में लिख रहा हूं मैं m2 इंटू e इंटू u1 माइनस u2। करेक्ट है ना। यस सर। Yes, तो sir. यस, तो m1 प्लस m2 इंटू v1 इज इक्वल टू, देखो मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, थोड़ा अरेंज कर रहा हूं मैं, m1 माइनस m2, सॉरी e इंटू m2, है ना, e इंटू m2, e इंटू m2 u1, ओके, प्लस में m2
माइनस में m2 माइनस में m2 इंटू ई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू ई, यानी इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं m2 1 प्लस ई इंटू में u2 लिख सकता हूं। तो यहां से v1 कितना आ जाएगा? Yes, sir. v1 आ जाएगा आपका m1 माइनस, मैं लिखता हूं इसको थोड़ा सा, m1 आ जाएगा आपका, v1 आ जाएगा आपका m1 माइनस ई इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में u1 प्लस में m2 1 प्लस ई अपॉन में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू में u2। यस, अब देख सकते हो इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसको याद रखना, मुझे तो याद नहीं रहता है, तो मैं तो नहीं याद करता हूं। मैं क्या करता हूं, ये दो इक्वेशन बनाता हूं, हाँ ये दो इक्वेशन बनाता हूं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं हमेशा, ठीक है। तो रटने से तो फायदा नहीं है, ठीक है, बस सिर्फ अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा कि हाँ ये है, ये हो गया। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया? v1 निकल के आ गया। हम v2 भी निकाल सकते हैं, देखो इसी तरह से हम v2 भी निकाल सकते हैं, है ना, v2 भी निकाल सकते हैं। ये देखो v2 है ना यहाँ से, तो हम यहाँ पे किसी में पुट कर दोगे तो v2 भी आ जाएगा, है ना। इसी को थोड़ा सा इसको, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ रिजल्ट, है डायरेक्टली लिख रहा हूँ आफ्टर सर्टेन मैनिपुलेशन, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। तो एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन किया हमने v2, तो v2 इक्वल टू हम कह सकते हैं e इंटू आई, मुझे हो सकता है मैं भी गलत हूँ, m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में आ जाएगा यहाँ पर u2 प्लस में m1 1 प्लस e अपॉन में, सिंपल मैं ये कर रहा हूँ कि जहां पर m1 है वहां पे मैं m2 कर दे रहा हूँ, m1 प्लस m2 इंटू में u1। आई थिंक आई एम राइट, थोड़ा चेक करना। यस सर, करेक्ट है। पक्का? हाँ, हाँ पक्का करेक्ट है, यस यस करेक्ट, यस आई एम करेक्ट। तो ये हमारा v2 आ गया, ठीक है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा, बट मेरे हिसाब से फॉर्मूला रटना बेकार है। ओके, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। हेलो, हाँ, अच्छा, अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ, देखो ये तो किसी भी, ये आपका इलास्टिक और इनलास्टिक दोनों में लगेगा, ठीक है। मान के चलो आपके पास अगर ये कोलिजन इलास्टिक दे रखा होता, ये बोलता कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? नहीं 1, E इक्वल टू 1, 1 पुट कर देंगे इलास्टिक कोलिजन के लिए, इलास्टिक है, इलास्टिक। हाँ इलास्टिक है ना, इलास्टिक कोलिजन के लिए, यस। और 0 पुट करेंगे E की वैल्यू किसके लिए? इन इलास्टिक के लिए। किसके लिए? इन इलास्टिक के लिए, इन इलास्टिक, करेक्ट। ये थोड़ा ध्यान देना है, यस सर। यही सब फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू कभी कुछ कभी कुछ, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ केसेस हैं, ओके, केस, कुछ केस हैं, केस, दैट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। यू कैन थिंक। केस नंबर 1, केस नंबर 1, देखो एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, चींटी है एक छोटी सी, और एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, हाथी है, ठीक है। इसका मास हो गया m1 और ये हो गया m2, बट m1 जो है वो बहुत छोटा है किससे? m2 से, ठीक है। m1 जो है बहुत छोटा है m2 से। इसकी वेलोसिटी, हाँ इसकी वेलोसिटी मान लो तुम्हारी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। तो मुझे बताओ, जब ये छोटी सी चीज जाकर के बड़ी सी चीज से टकराएगा तो किस पे फर्क पड़ेगा? छोटे वाले पे पड़ेगा या बड़े वाले पे कुछ फर्क पड़ेगा? ज्यादा असर किस पे? हाँ छोटे वाले पे पड़ेगा, बड़े वाले पे ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, है ना। जो बड़ा वाला होगा उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो बड़ा होता है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, छोटे वाले पे ही पड़ता है। तो यस, तो अब मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी अगर तुम इसको देखो, v1 हमने निकाला,
यहाँ पे रिलेशन देखो v1 इज इक्वल टू क्या है, m1 माइनस में e इंटू m2 m1 प्लस m2 u1, ये है रिलेशन v1। ठीक है, तो देखो अगर m1 बहुत छोटा हुआ किससे, m2 से, तो m1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, m1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ऊपर वाले रिलेशन से, है ना, m1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, sir. नेग्लेक्ट करो, तो नेग्लेक्ट करो, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करूँ इसको, यार मैं m1 को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, देखो m1 को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, तो m1 को नेग्लेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस में e इंटू में m2 अपॉन में m2 इंटू में u1 प्लस में m2 1 प्लस e अपॉन में, है ना, m2 इंटू में u2, तो m2 से m2 तो वैसे ही उड़ गया, तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस e इंटू u1 प्लस 1 प्लस e इंटू u2, करेक्ट है ना। यस सर। अच्छा, यस हाँ। सर। अगर मैं कहता कोलिजन आपका कैसा है, अगर मैं कोलिजन कहता इलास्टिक है, इलास्टिक है, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, हाँ। E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अगर इलास्टिक वो 1 आ कोलिजन, जाएगा। हाँ, फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, 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 यस, इलास्टिक कोलिजन, तो E इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 1, तो u1 v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस u1 प्लस 2 इंटू u2, करेक्ट है ना। हाँ, यस यस सर। सर। अब अगर मान लो ये बड़ी सी चीज हाथी ना होकर के एक दीवार होता, है ना, दीवार, दीवार से जाकर के चींटी टकराता, या दीवार से जाकर के बॉल टकरा रहा है ना, अगर ये दीवार होता, तो दीवार होता तो u2 क्या होता आपका, हाँ। है ना, अगर जीरो। अगर हाँ, अगर m2 आपका वॉल होता, क्या होता, वॉल, तो u2 आपका क्या हो जाता, 0, तो u1 v1 इक्वल टू क्या हो जाता, u1, करेक्ट है, मतलब हुआ क्या, रियल। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल Opposite पहले, direction। हाँ, बॉल पहले इधर की तरफ जा रहा था u1 वेलोसिटी के साथ, और इससे टकराने के बाद बॉल किधर की तरफ आ जाएगा, वापस आ जाएगा, यानी कि एक बॉल है, ये जैसे वॉल है, इस वॉल से ये बॉल जाकर के टकराएगा कितने स्पीड से, u1 स्पीड से, तो टकराने के बाद ये किधर की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा, कितने स्पीड से, दैट इज इक्वल टू माइनस u1 स्पीड से, करेक्ट। बट अगर ये बॉल मूव करने वाला Yes, हो, sir। हाँ, अगर बॉल ये मूव कर रहा होता, मान लो उसके पास कुछ वेलोसिटी होती, तो v1 इक्वल टू क्या लिखते, माइनस ऑफ u1 प्लस 2u2, इलास्टिक कोलिजन के लिए। बट कोलिजन अगर इलास्टिक नहीं होगा तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। मेनली हमें ये केस ध्यान रखना है कि अगर किसी वॉल से जाकर के बॉल टकराता है, तो टकराने पे उसकी वेलोसिटी, ये तो कॉमन सेंस है, अपोजिट हो जाता है, जितना पहले था उतना ही हो जाएगा। बट कौन से कंडीशन में, कंडीशन याद रखना है, किस कंडीशन में, इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में, अदरवाइज वी कैन नॉट, हाँ, अगर हम नहीं तो नहीं कह Yes, सकते। sir। हाँ, तीसरा केस, दूसरा केस, केस नंबर 2, केस नंबर 2। अच्छा, व्हाट इज द v2, अगर v2 की बात करें तो v2 कितना हो जाता है इसी वाले केस में, इसी वाले केस में मैं v2 देखूं तो, ये v2 देखो, तो यहां पर मैं v2 देख रहा हूं, तो v2 देखो यहां पे क्या आ जाता, v2 इक्वल टू m1 को तो हम नेग्लेक्ट कर चुके थे, तो क्या आ जाता, e इंटू में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, e इंटू में u2, और ये 0 हो जाएगा, तो e इंटू में u2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, e इंटू में u2। देखो m1 तुम्हारा हटा दिया, m1 is very small, so I am neglecting this term, so here I am also neglecting m1, तो यहाँ पे m2 by m2 आएगा, तो m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, e आ जाएगा। तो जो वेलोसिटी होगी वॉल की, या मान लो हाथी से जाकर के टकरा गया, किसी बड़े आदमी से जाकर के टकरा गया, ये कोई छोटी सी गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी से टकरा गई, तो उसकी वेलोसिटी पे, गाड़ी की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, थोड़ा सा चेंज आने वाला है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू e इंटू में u2, करेक्ट, ठीक है। यस सर। यस, ओके, केस नंबर 2, केस नंबर 2, सर वो दियो एक बार, लास्ट वाला एक बार लिखो। हाँ हाँ,
हाँ बस यही हाँ m2 अगर वॉल पे लगेगा ut इक्वल्स टू 0 v1 इक्वल्स टू माइनस u1 और v2 इक्वल्स टू u2 हो गया सर। केस नंबर टू अगर मैं कहता दोनों में अगर m1 जैसे पीछे वाला बॉल जो था उसका मास बहुत ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, m2 के कंपेयर में, है ना। मतलब कोई बड़ी सी चीज आकर के छोटी सी चीज से टकराती है, जैसे बड़ा सा ट्रक आकर के छोटे वाले किसी चीज से टकरा जाता है ना, छोटे लोगों से टकरा जाता है जो हाँ। जैसे जो साइकिल वाइकल चलाते हैं, है ना, वो लोग अपने आप को कुछ भी और समझ लेते हैं तो कहीं से भी बड़े गाड़ी वाले चला देते हैं, है ना। तो उसके तो देखो उसके साथ क्या है, बड़ा वाला चीज से अगर छोटा वाला, यानी कि ये हो गया, ये बड़ा वाला चीज हो गया जिसका मास हो गया m1 और ये मास हो गया m2। तो तुम्हें पता है इस पे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा इस वाले पे, ठीक है। तो अगेन वी कैन राइट v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो v1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा देखो। अगर मैं कह रहा हूं m2 को नेग्लेक्ट कर रहा हूं ना, तो दिस टर्म गोज टू बी 0, है ना, m2 वाला ये टर्म तो हो जाएगा 0। यस सर। अब ये वाला में देखो m2 हटा दूंगा तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, वो किसके बराबर जाएगा, v1 इक्वल टू u1 आ जाएगा, v1 इक्वल टू u1। मतलब बड़े वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना पहले वेलोसिटी था उसका उतना ही फाइनल वेलोसिटी भी होगा, करेक्ट, ठीक है। हाँ अच्छा v2, हाँ सर। v2 को थोड़ा ध्यान से देखो। इस वाले केस में अगर मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं किसको, m2 को, तो देखो ये टर्म तो हो जाएगा 0, ठीक है, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस u2, इधर से आ जाएगा माइनस u2, और इधर से देखो m2 हटाने पर m1 प्लस ई इंटू में u1 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा माइनस u2 प्लस 1 प्लस ई इंटू u1, करेक्ट है ना। यस सर। मतलब अगर मान लो ये चीज अगर रेस्ट में होता, सपोज दैट ये चीज आपका रेस्ट में होता, मैं केस लिख रहा हूं कि इफ m2 u2 इक्वल टू 0, इफ कहता मैं जो छोटी वाली चीज थी वो रेस्ट में है और जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज बिकम 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इस वाले की जो भी वेलोसिटी होगी उसके दुगनी हो जाएगी। अगर ये छोटी सी चीज है और ये रेस्ट में है और इसके साथ कैसा कोलिजन हो रहा है, इसका इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इससे टकराने के बाद छोटे वाले की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी पहले वाले की, करेक्ट है ना। यानी इसमें ज्यादा चेंज आएगा बट इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये u1 से मूव कर रहा था, u1 से ही मूव करेगा, बट ये 2u2 से करने लग जाएगा, करेक्ट, 2u1 से। हाँ यस सर। नाउ केस नंबर 3, अगर मैं कहता m1 इक्वल टू m2 है, दोनों का मास बराबर है ना, m1 इक्वल टू m2 है, यानी ये दोनों का मास मैं कह रहा हूं बराबर है, तो v1 क्या हो जाएगा, v2 क्या हो जाएगा, टेल मी। आपने लिखा है आपने आंसर, बताओ v1 क्या होगा, टेल मी। m1 इक्वल टू m2 पुट करो उसमें इक्वेशंस में, m1 इक्वल टू m2 पुट करो, तो देखो ये हो जाएगा 1 माइनस ई बाई 2 इंटू u1 और ये हो जाएगा 1 प्लस ई बाई 2 इंटू u2, नहीं चेक हो जाएगा। यस v1 बिकम 1 माइनस ई बाई 2 इंटू u1 और प्लस 1 प्लस ई बाई 2 इंटू u2, करेक्ट, u2 यस सर। अगर मैं कहता कोलिजन इलास्टिक है, टेल मी, कोलिजन इज इलास्टिक, तो उस वाले केस में E की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, तो E की वैल्यू 1 होगी तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो u2 आ जाएगा, है ना। यस सर। हाँ अच्छा v2 बताओ, v2 कितना आया, v2 इक्वल टू, अगर m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा तो देखो क्या आ जाएगा, यहां से चेक करो, ये आ जाएगा e माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू u2 और 1 प्लस ई, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू u1। हाँ तो मैं ये लिख रहा हूं, ये आ जाएगा आपका e माइनस 1 अपॉन 2 इंटू u1 नहीं u2 आएगा, आई थिंक u2 है यहाँ पे,
यस u2 यहाँ पे आएगा u2 प्लस 1 प्लस e इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू u1। फिर से अगर कोलिजन अगर इलास्टिक हुआ e इक्वल टू 1, देन यू कैन सी v2 इक्वल टू व्हाट, u1। समझ में आ रहा है बात? हाँ, मतलब हुआ क्या चीज हुआ हाँ, ये हाँ, हुआ यूं कि अगर ये बॉल है, दोनों का मास सेम है, यानी इसका मास m है, इसका मास भी m है, इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा? अगर कोलिजन इलास्टिक है तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? u2 के बराबर, इसकी बराबर हो जाएगी u2 के बराबर, और इसकी U2 वेलोसिटी की। हाँ इसकी बराबर क्या हो जाएगी? हाँ, u1 के बराबर। यानी वेलोसिटी U1 का की। एक्सचेंज हो जाएगा, करेक्ट है? वेलोसिटी में एक्सचेंज हो जाएगा। यस सर, Yes, sir. So this is the three cases. Yes, sir. Yes, that is the three cases that you have to be remember. Okay, and this is the all about head-on collision, all about the head-on collision. सर लास्ट केस दिखाइए सर एक बार हाँ, लिख कर। लिख लो। एक क्वेश्चन करते हैं। यस सर, सर लिख लिया। हाँ, लिख लिया। Yes. हाँ, Yes. Okay, so now we solve some problem. Okay, very good. Yes. I'm not solving. You will solve. Okay, you will solve. I'm not solving. So there will be a wall. Okay, there will be a fixed surface. Yes, sir. On which we drop a ball. Okay, we drop a ball. Okay, we drop a ball. So it collide with the ground and bounce, है ना? बाउंस, फिर ये नीचे जाएगा, Yes, sir. फिर बाउंस करेगा, फिर जाएगा, फिर बाउंस करेगा। तो आपको बताना है आफ्टर द if the coefficient of restitution, please don't see anywhere, कोई भी सोर्स यूज नहीं करेगा, सब अपने आप से करोगे तो बेटर आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। if the coefficient of restitution between ball and surface is E, find the height of the ball from the surface after nth collision, also velocity. Okay, you have to calculate this thing. So this is the homework. Yes. Yes, please solve it at home. Yeah, there is a same kind of problem I give you. Okay, same kind. This is another problem. There is another problem. Yes, we can solve. Very, very easy. You can do it. I know that you can do it. If you run your mind, you can do it. So here we project a particle. Okay, I am going to project a particle with some velocity u. Okay, with some velocity u at an angle theta. So what happened? This ball goes here. Okay, collide with this surface. Okay, एक बार जाएगा यहाँ पर और यहाँ से जाके टकराएगा, फिर से ये बाउंस होगा, ये ऐसे टकराएगा, फिर से यहाँ पे जाकर के टकराएगा, फिर बाउंस होगा, है ना?
ऐसे करके होता रहेगा, हाँ है ना। तो आपको बताना है nth कोलिजन के बाद, nth कोलिजन के बाद, nth कोलिजन के बाद, nth कोलिजन के बाद, nth कोलिजन के बाद coefficient of restriction between the wall is E again. Find the range, height, maximum height and time of flight after nth collision, correct. So please solve it. Okay, please solve it. This is the homework. collision. Yes, this is the homework. Okay. Okay. So this is the what we discussing the oblique collision. Okay. Now we are discussing a not only head on collision. अब हम करते हैं एक प्रॉब्लम oblique collision पे. हाँ, एक oblique collision पे करते हैं. Yes sir. Okay. Yeah. So what is the question? Very simple question. Huh? Okay. ये हम करेंगे. हाँ, अभी करेंगे. ये एक बॉल है, सरफेस है, ठीक है. ये एक सरफेस है आपका. ये कौन हिल डुल रहा है? बैठ जाओ आराम से. ओके, ये हो गया आपका सरफेस का नॉर्मल. हाँ, और यहां से हम क्या करते हैं, एक बॉल को ऐसे करके थ्रो करते हैं. एक बॉल को थ्रो करेंगे कुछ एंगल पे, मान लो थीटा एंगल पे हमने थ्रो किया बॉल को, ठीक है. इसका मास m है और हमने इसको थ्रो किया कितने स्पीड से, मान लो u स्पीड से, ठीक है. आपको बताना है आफ्टर द कोलिजन what is the velocity of the ball. You have to tell me what is the velocity of the ball. Also at which angle, कितने एंगल पे ये नॉर्मल के साथ यहां से इसकी वेलोसिटी होगी. मींस दिस एंगल यू हैव टू टेल मी. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, if the coefficient of restitution is E. Okay, so we have to solve this problem. Yeah. कैसे करें, थोड़ा यहां पर बॉल यहां पहले इस डायरेक्शन में आ रहा था और इस सरफेस के साथ टकराने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना. मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया. तो लाइन ऑफ एक्शन चेंज होने का मतलब ये किस टाइप का कोलिजन है, यहाँ पे ऑब्लिक कोलिजन. क्या है, ऑब्लिक कोलिजन है. यस, एग्जैक्टली. तो ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने उस दिन आपको थ्योरी बताई थी कि क्या बताई थी थ्योरी, थोड़ा याद करो, थोड़ा याद करते हैं क्या करा था हमने. वो पॉइंट्स लिख लो, ठीक है. मैं बोल रहा हूं कहां पे गया. हाँ, थोड़ा पॉइंट लिखना. हाँ, लिखवाऊं ऑब्लिक कोलिजन. हाँ, ये था ना ऑब्लिक कोलिजन में. तो इसमें पहला क्या चीज था, हाँ, पहला क्या चीज था इसमें कि मैंने बताया था किसी भी टाइप का कोलिजन है हम मान के चलते हैं कि इस पूरे दोनों चीज के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. तो यानी कि टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, है ना. टोटल मोमेंटम, हाँ, मोमेंटम कंजर्व रहेगा. अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोलिजन जब हो रहा है तो इसके ऊपर देखो, ये जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन, थिंक अबाउट इट, एट द टाइम ऑफ कोलिजन ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है. शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. तो और वो जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे के ऊपर वो नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है. क्या लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है.
तो मोमेंटम नॉर्मल का डायरेक्शन। हाँ, जो मोमेंटम का चेंज आएगा इन दोनों बॉल का, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? नॉर्मल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में आएगा? नॉर्मल डायरेक्शन में। आ रहा बात में? हेलो जी। हाँ, कि जो Yes, sir. वेलोसिटी में चेंज आएगा या जो आपका मोमेंटम में चेंज आएगा वो नॉर्मल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इंपल्स लगता है। इंपल्स का मतलब क्या था? इंपल्स कॉज द चेंज इन मोमेंटम। तो यदि मैं कह रहा हूं इस ब्लॉक के ऊपर इंपल्स लगा इधर की तरफ, यस सर। मोमेंटम जो चेंज होगा वो इसी डायरेक्शन में चेंज होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो इंपल्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। तो नॉर्मल डायरेक्शन में इंपल्स एक्ट कर रहा है। ओके, नॉर्मल डायरेक्शन में इंपल्स एक्ट कर रहा है, तो मोमेंटम का चेंज किधर की तरफ आएगा? नॉर्मल डायरेक्शन में। इस वाले का बॉल का भी और इस वाले बॉल का भी, ठीक है। बट along the tangent there will हाँ। be no impulse. You can see along the tangent there will be no impulse. So in the tangential direction there will be no change in momentum of this ball. No change in momentum of this ball. Okay, no change in momentum along this in the of the ball. Okay, along the tangential direction. Along the tangential direction. Okay, ठीक है। और Yes जो sir. हमने Sir. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का जो फॉर्मूला लिखा है, ई का जो फॉर्मूला लिखा था, कहा था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जो फॉर्मूला है वो भी कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगेगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है एक्चुअली में कॉमन नॉर्मल के ही अलोंग, मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही आएगा। इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है, ये जो फॉर्मूला लगेगा वो भी तुम्हारा नॉर्मल के अलोंग ही लगेगा। तो लिखो, कुछ पॉइंट्स लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, a pair of a pair of a pair of a pair of equal and Spear opposite, sir. SPREH spear. pair, yes, a pair, yes, a pair of equal and opposite impulse, a pair of equal and opposite impulse act along common normal, along common normal. See, I write this thing, common normal. Hence linear momentum, hence linear momentum of individual means, if we talking about body A and body B, individual bodies do change along common normal direction, along common normal direction. Okay, and I assume here one thing, mass is constant. Yes, sir. मास चेंज नहीं कर रहा है, मास कांस्टेंट है। मतलब कोलिजन के बाद ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें टूट करके निकल जाती हैं। सो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन देयर विल बी नो चेंज इन मास, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड पॉइंट लिखो, no component of impulse act along common tangential direction. Why there will no impulse along the common tangential direction? Because we assume that, write this thing, because we assume that the surface of two balls is smooth. अगर स्मूथ नहीं होता तो फ्रिक्शन आएगा। अब मैंने बताया था फ्रिक्शन जो है सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में आता है। याद करो, जब मैं फ्रिक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था फ्रिक्शन इज एक्टिंग अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द आपने सर्कुलर मोशन में भी बोला था सर, आपने सर्कुलर मोशन में भी बोला था। हाँ, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सरफेस स्मूथ है, इसीलिए उस डायरेक्शन में कोई भी इंपल्स नहीं होगा, ठीक है। अगर रफ सरफेस होगा तो आप जो है, मैं जो बात अभी बोल रहा था कि नो कंपोनेंट ऑफ इंपल्स, देयर विल बी अ इंपल्स एक्ट अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन आल्सो,
I will give you problem. I will give you on that particular thing. I will give this question. So no component of impulse act along the common tangential direction Common tangential direction because no surface of the ball is smooth, or surface of the system, you can say surface of the system is, we assume that, smooth. Okay, so hence linear momentum or linear velocity of individual bodies, सर फिर से बोलिए सर, स्मूथ के बाद क्या है? smooth, लीनियर मोमेंटम. hence linear momentum हाँ, or linear velocity of individual bodies bracket if mass is constant, bracket close, remain unchanged along this direction, means whatever the velocity along the tangential direction body have, okay, so that will be same before and after the collision, that will not change because there will be no tangential momentum impulse along the tangential direction. ठीक है. Next point, net Yes. impulse. Yes, next point, net impulse on both bodies, net impulse on both bodies is 0 during the collision. Hence net momentum of the bodies remain conserved before and after the collision, in any direction. You can see, if you consider both as a system na, so the net momentum, because this momentum will act in this direction, this momentum act in this direction, so net becomes 0. So net momentum act on this system is 0. So that's why we can say that there will be net momentum of the system remain conserved at this for any kind of collision. Okay, next, last point, definition of coefficient of restitution. Can be applied. सर एक सेकेंड. हाँ, sufficiently practice. हाँ, Not elaborate. हाँ, definition of coefficient of restitution Ab- can be applied along common normal direction. Means this definition, E equal to velocity of separation divided by velocity of approach, is applicable along the common normal direction. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको Yes, दिमाग sir. में रखने हैं. जब भी ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन आएगा तो ये 4 पॉइंट दिमाग में रखना है, तो हम कोई भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. ओके, सी here this is our ball and I consider ball and this surface, this rigid surface, okay, as a system. Okay, ball and surface I consider as a system. Okay, one thing you have to note here, क्या है, मैंने अभी बोला था कि there will be no impulse along the tangential direction when we assume that surface is smooth. So I am considering surface is smooth. Correct. So whatever the if we अभी हमें अब 4 कंडीशन अप्लाई करना है. तो जो मोमेंटम, अगर तुम देखो, ये सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन हो गया और ये सरफेस का क्या हो गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया.
ये सरफेस का टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया, ये वाला सरफेस का टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस बॉल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स तोड़ता हूं, एक तो अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन आएगा और एक सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पे ध्यान से देखिए, कभी भी ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन हो तो पहले वेलोसिटी को क्या करो, नॉर्मल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में तोड़ दो। सो दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन, दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन। So you can see here this angle is theta, so this angle is also theta. Okay, so if this angle is theta, so what is the component of this u? That is u cos theta, and that is u sin theta. Okay, so this is the component of this ball, velocity of this ball. After the collision, this is the situation. So if I consider this angle is phi, so this angle is also, this angle is phi, so this angle is also phi. Correct? I am correct. This angle is phi, so this angle is also phi. Yes. Hello. Hello. Yes sir. हाँ हाँ, थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स कर देना, ठीक है। So what is the velocity? What is the component along this direction? So this is v cos phi, and this is the v sin phi. Okay. So first job हमेशा ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, पहला काम क्या करना है, you have to be resolve the component of the object along the tangential and normal direction. सर Then आप एक स्टेप्स के थ्रू लिख दीजिए ना, हमको भी आराम हो जाएगा। हाँ, तो ये पहला स्टेप लिख लो ना, बट ये जरूरी नहीं है ना कि क्वेश्चन का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि देखो थ्योरी अगर तुम समझ गए हो तो स्टेप थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, ठीक है। बट ट्राई टू अप्रोच, जरूरी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अच्छा। बट हाँ, बट ये है कि थ्योरी आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने पढ़ाया। तो मैं लिख देता हूं, वैसे फर्स्ट स्टेप इज टू रिजॉल्व द component of velocity of individual bodies along normal and tangential direction, ठीक है। उसके बाद अब देखो, मैंने अभी जैसे बताया आपको कि जब जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो किस डायरेक्शन में चेंज आएगा, नॉर्मल डायरेक्शन में, सरफेस के नॉर्मल, यानी कि देखो बॉल यहाँ पे जब टकराएगा, जो बॉल टकराएगा, बॉल यहाँ पे जाके टकराएगा, यहाँ पे जाके टकराएगा, तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो नॉर्मल डायरेक्शन में आएगा। मोमेंटम में, इस बॉल के मोमेंटम में जो चेंज आना है वो नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज आना है ना, वो नॉर्मल, हाँ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। तो चूंकि सरफेस हमने क्या माना है, स्मूथ माना है, सो बिकॉज ऑफ दिस आई राइट सेकंड स्टेप, बिकॉज ऑफ दिस स्टेप 2 वी कैन परफॉर्म, व्हाट इज दैट, वी कैन से दैट द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, है ना, मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल along the tangential direction is same. So momentum of individual particle along the tangential direction is conserved. तो अब अगर मैं देखूं इसका मोमेंटम टेंजेंशियल डायरेक्शन में इनिशियली कितना था इस बॉल का, मैं एक इंडिविजुअल बॉल को ले सकता हूं, तो इनिशियल मोमेंटम होगा इसका m u sin थीटा, है ना, m u sin थीटा, दिस इज द पॉजिटिव, आई एम पुटिंग हियर साइन m u sin थीटा पॉजिटिव बिकॉज पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सो m u sin थीटा पॉजिटिव, and that should be equal to final momentum which is along the tangential direction, so velocity in this direction v sin phi, so we can say m v sin phi.
सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, m से m उड़ गया है ना, इसको नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा u sin थीटा equal to v sin phi. See here we have two unknowns because we don't know phi, we don't know v, so we have two unknowns, still we have only one equation, so we cannot solve that. So to solve this equation Yes. we required another Yes, sir. step, step 3. देखो यहाँ, अच्छा इस क्वेश्चन में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन नहीं लगा सकते, क्यों? कोई बताएगा मुझको? नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते, क्यों? एक्सटर्नल कोई फोर्स, रेसिस्टेशन नहीं है शायद। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, बट देखो अगर तुम वाई डायरेक्शन में लगाने, एक्सटर्नल फोर्स है mg। हाँ mg, यस एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। सी बॉल को आप वर्टिकली फेंक रहे हो ना, वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रहा है, आ रहा बात में, वर्टिकल मोशन वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। तो हाँ, एक mg जो है, अगर मैं बॉल को और सरफेस को ही सिर्फ मैंने सिस्टम माना है, देखो मैंने अर्थ को तो सिस्टम नहीं माना है, मैंने बॉल और सरफेस को माना है सिस्टम, ठीक है? तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स होगा, जैसे नॉर्मल फोर्स, वो इंटरनल फोर्स हो गया। बट मैंने क्या किया है, अर्थ को सिस्टम में नहीं माना है। तो अर्थ को यदि सिस्टम में नहीं मानेंगे तो अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन हमारा मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि mg जो है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है? सो अलोंग इन दिस केस वी कैन, तभी मैं कह रहा हूँ ना स्टेप तुम्हारे फ्लक्चुएट कर सकते हैं, तो इसीलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहां पर मैं नहीं लगा सकता, ठीक है? बट किसी दूसरे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है? ठीक है, तो यस सर। ठीक है, तो वी कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग दिस नॉर्मल डायरेक्शन, बट दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो मैं यहाँ पे स्टेप 3 क्या लिख रहा हूं, बट हाँ, डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, we can apply along the normal direction. So Can be applied हाँ, only common normal direction. only common direction. So velocity of separation before velocity of approach divided by velocity of separation. So see, देखिए, Cannot apply law हाँ of conservation. हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, इस जो ये जो दूसरा जिससे जाकर के टकराने Momentum वाला है ना, दूसरे वाले से जिससे टकराने वाला है, जिससे हाँ। टकराने वाला है बॉल, उसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं है नॉर्मल डायरेक्शन में, है ना? यानी ये तुम्हारा u1 हो गया, बट u2 क्या है तुम्हारा यहाँ पे, 0 है, क्योंकि इस सरफेस का कोई भी मोशन नहीं है ना? बट अगर होता है इसका तो आप इसको 0 नहीं कह सकते थे। हाँ। उसी तरह से टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 अलोंग दिस डायरेक्शन, बट इसकी वेलोसिटी स्टिल v1 भी क्या, v2 क्या होगा, वो भी 0, क्योंकि ये वॉल है। तो वेलोसिटी ऑफ 0 होएगा। हाँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया, दैट इज u sin थीटा। इसी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है ये बॉल, ये जो आ रहा है नीचे की तरफ बॉल, वो बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी, और ये यहां से ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ v sin phi. So this is the velocity of separation. So v sin phi, correct? Now we Yes, have sir. two equation. Now we have two equation. So we can solve these two equations and then we get the answer. Okay. So यहां से देखो, यहां से हम, Yes sir. हाँ, तो v, no, not v sin phi, this is a v cos phi, I'm sorry, v cos phi, this is v cos phi, yes, v cos phi. तो यहां से देखो v cos phi क्या आ जाएगा आपका, that is equal to आ जाएगा e into u sin थीटा। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं, इससे इसको डिवाइड कर दूं, तो देखो v sin phi अपॉन v cos phi इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा तुम्हारा u sin थीटा, ये u cos थीटा होगा, सॉरी ये u cos थीटा है, u cos थीटा है, ये u cos थीटा है, ये u cos थीटा है, अरे यार ये u cos थीटा है, ये सॉरी u cos थीटा है, u cos थीटा है, हाँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा u sin थीटा, u sin थीटा, u sin थीटा अपॉन e u cos थीटा। सी u से u उड़ गया,
v से v उड़ गया, तो यहां से देखो tan phi जो आ जाएगा आपका, tan phi जो आ जाएगा, tan phi, जो tan phi आ गया वो आ गया आपका sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा बाय e आ गया। यानी यहां से मैं फाई निकाल सकता हूँ। फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा अपॉन में e आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि एंगल निकालना था कि कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, तो ये इतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा tan थीटा बाय e पे, हाँ करेक्ट। अब हमारा दूसरा केस क्या था, u निकालना था हमें, है ना, u नहीं सॉरी v निकालना था। यस फाइनल सर, वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। तो देखो tan phi इक्वल टू, यहां से देखो फाइनल ध्यान से, वेलोसिटी। हाँ tan phi इक्वल टू tan थीटा बाय e आ गया, है ना। तो अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास, अगर ये एंगल फाई है तो ये tan थीटा हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा e, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर e स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट है ना, हेलो, Yes, sir. है ना। tan phi इक्वल टू tan थीटा यस अपॉन सर, e, यस। सो व्हाट इज द sin phi इज इक्वल टू बिकम सामने वाला साइड विच इज tan थीटा अपॉन में हाइपोटेन्यूस e स्क्वायर इनटू में tan स्क्वायर थीटा। Now put the value here, this you have to put here. So v is equal to become u sin theta upon में sin phi. So if you put sin phi value, so you get v equal to u sin theta upon tan theta into में क्या आ जाएगा, 1 प्लस सॉरी e स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा ले सकते हैं। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं v इक्वल टू हाँ u cos थीटा रूट ओवर e स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। सो दिस इज आवर आंसर, करेक्ट, यस सर, इजी, यस सर, सॉल्व कर सकते हो सब। या इजी। सो दिस इज द ऑब्लिक हाँ कोलिजन, जी सर। हाँ यस दिस इज द ऑब्लिक कोलिजन। आई एम आल्सो गिविंग अ प्रॉब्लम, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क, एज अ होमवर्क हो, सॉल्व करोगे तभी मैं सॉल्व करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा मैं सॉल्व। एक होमवर्क देता हूं आपको, यस आई एम गिविंग नाउ होमवर्क। And we have a ball, okay, we have a ball, ये एक बड़ा सा बॉल है, ठीक है, okay, and there will be another ball. So this is the, okay, so this is the, ये है बॉल, इसका रेडियस जो है बॉल का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर, ठीक है। और ये जो बॉल था, ये जो छोटा वाला बॉल है वो यहां से कितने हाइट पे है, यहां से कुछ हाइट पे है, ये है तुम्हारा, हाँ ये है तुम्हारा हाइट रो पे, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी जो है वो v है, छोटे से बॉल की है, ऐसे करके v है। तो और इसका भी मास जो है वो m है और इसका मास भी m है, ठीक है, इन दोनों का मास m है, ठीक है। और ये जो आपका रो है, ये डिस्टेंस जो है रो, वो स्मॉलर देन है किससे, इसके रेडियस से, ठीक है, ओके। हाँ आपको फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी, ये आपस में कोलाइड होगा, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स after the collision, after the collision, after the collision, after the collision, okay. And I am assume that coefficient of restriction is 1, means elastic collision है, ठीक है। So this is the homework, you have to solve यस it, okay.
हाँ Yes, sir. कोई समस्या जो आज पढ़ाया?